یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ 9 فروری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ لیبیا میں کشتی ڈوبنے سے 2 بچوں سمیت 53 افراد ہلاک۔ ایران میں نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو مزید قید کی سزا۔ مظاہروں میں 100 طلباء کی ہلاکتوں کا انکشاف۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کو 1 دن کا نوٹس۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں احتجاج کرنے پر PTI کے 200 کارکن گرفتار۔ بھارتی گاؤں میں تعلیم یافتہ خواتین کو شناخت دینے کا انوکھا فیصلہ۔ مزید یہ بھی جانیے کہ یورپ کا چھوٹا سا ملک کار سازی کا عالمی پاور ہاؤس کیسے بن گیا۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے بین الاقوامی تنظیم برائے تارکین وطن یعنی IOM نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے سبب 53 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ IOM کے ایک ترجمان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ یہ کشتی لیبیا میں زراوو کے قریب 6 فروری کو حادثے کا شکار ہوئی تھی، جس کے بعد صرف 2 نائجیرین خواتین کو سرچ آپریشن کے دوران ریسکیو کیا گیا تھا۔ حادثے میں بچ جانے والی ایک خاتون کے مطابق انہوں نے اپنے شوہر کو کھویا ہے، جبکہ دوسری خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے 2 بچے بھی اس حادثے کے بعد لاپتہ ہیں۔ بچ جانے والی خواتین کے بیانات کے مطابق یہ کشتی 5 فروری کو لیبیا کے علاقے زاویہ سے چلی تھی اور اس میں افریقی نیاد باشندے سوار تھے۔ IOM کے ڈیٹا کے مطابق صرف گزشتہ مہینے جنوری میں کم از کم 375 تارکین وطن کے ہلاک یا لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ ایران میں نوبل امن انعام یافتہ اور انسانی حقوق کی کارکن نرگس محمدی کو ایک ایرانی عدالت نے مزید 7.5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ ان کے وکیل مصطفیٰ نیلی کے مطابق مشہد کی عدالت نے انہیں غیر قانونی اجتماع اور ملی بھگت پر 6 سال اور ریاست مخالف پروپیگنڈا سرگرمیوں پر 1.5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ نرگس محمدی کو دسمبر میں ایک تقریب میں مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ اہل خانہ کے مطابق گرفتاری کے دوران ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ نرگس فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ تازہ سزا کے بعد ان پر مجموعی طور پر 44 سال قید کی سزائیں عائد ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکومت نے گزشتہ ماہ ہونے والے ملک گیر مظاہروں میں تقریباً 100 طلباء کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ نائب وزیر صحت کے مطابق مرنے والوں میں مختلف جامعات کے طلباء بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیکل سسٹم آرگنائزیشن کے مطابق جنوری کے مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 25,000 افراد زخمی ہوئے تھے اور 13,000 سے زائد سرجریاں کی گئیں، جن میں آنکھوں کے زخم نمایاں تھے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں گزشتہ ماہ ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیشن بنانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ BBC فارسی نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کمیشن کی سربراہی نائب صدر محمد رضا عارف کریں گے۔ کمیشن میں دیگر حکومتی ارکان کے علاوہ حکومت سے باہر کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ کمیٹی ان واقعات کی وجوہات کی مکمل جانچ پڑتال، ملک میں پائی جانے والی تقسیم کو ختم کرنے اور ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے کام کرے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ان کے وکیل کی فوری ملاقات کروانے کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سوموار کے روز سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی نے کہا کہ بغیر نوٹس کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا اور پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ عدالت نے اس معاملے پر کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اسی روز سپریم کورٹ میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق 13
13 मजीद दरखास्तों पर भी समाअत हुई। तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। साइफर केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया गया, जबकि अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में जमानत मनसूखी की दरखास्तें गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल में फराहम सहूलियात और इनकी मौजूदा हालत से मुतल्लक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के तकरीबन 200 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर की गई हैं। एहतजाज के बायस गुज़िश्ता रोज कोयटा और सूबे के दीगर शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल रही। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही, जबकि कुछ देर के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई, जिसे रात गए बहाल कर दिया गया। गिरफ्तार होने वालों में तहरीक इंसाफ और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुन शामिल हैं। इंडिया के एक गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि जिन घरों में आला तालीम याफ्ता खवातीन मुकीम हैं, वहां घर के बाहर खवातीन के नाम और उनकी तालीमी काबिलियत पर मुश्तमिल तख्तियां लगाई जाएंगी। गांव के सरपंच के मुताबिक इस इकदाम का मकसद खवातीन की तालीम को सराहना और नई नस्ल को तालीम हासिल करने की तरगीब देना है। पंचायत का कहना है कि इस फैसले से मुआशरे में खवातीन के किरदार और तालीम की अहमियत उजागर होगी। मज़ीद तफसील नवजोत कौर की इस रिपोर्ट में। मेरे घर के बाहर मेरे पापा की या मेरे दादाजी की नेम प्लेट नहीं है, बट मेरी और मेरी मम्मी की है। अगर कोई बाहर से आएगा देखेगा कि इस नेम प्लेट, यार इस घर में ये महिला की नेम प्लेट इतनी पढ़ी लिखी, उसको देखेगा कि अंदर से यार मास्टर डिग्री वाली कोई आएगी तो उसका बोलने का तरीका पहले से डिसाइड कर लेगा कि आगे पढ़ी लिखी है, मैं किस लेवल से बात करनी है। ये है हरियाणा के अंबाला जिला का गांव खेड़ागनी, जहां अब घरों की पहचान मर्दों के नाम से नहीं बल्कि गांव की लड़कियों और औरतों के नाम से होती है। वो लड़कियां और औरतें जिन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है। कुछ माह कबल गांव की पंचायत ने लड़कियों के नाम की नेम प्लेट घरों के बाहर लगाने का फैसला किया, जिसके बाद 30 औरतों के नाम की प्लेट्स उनके घरों के बाहर लगाई गई हैं। जो ये सिमरन सैनी है, ये बैंक में करती है जी जॉब मोहाली में, ठीक है। और रजनी सैनी BA B.Ed है, ये है आंगनवाड़ी वर्कर। बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा औरतों के नामों वाली प्लेट्स लगी हैं। इनमें से एक घर है BCom कर चुकी तमन्ना और उनकी वालदा आशा रानी का, जिन्होंने हिंदी में MA किया हुआ है। हमें लगा कि हमारे घर के बाहर जो प्लेट लगी है तो इससे हमारी क्वालिफिकेशन भी पता चल रही है और आगे जो बच्चियां हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिल रही है। बल्कि मेरे से ना एक छोटी बच्ची ने पूछा शाम को ही, कह रहे आंटी जी ये प्लेट मेरे घर के बाहर क्यों नहीं लगी? तो मैंने उससे कहा बेटा जब तू कर लेगी ना तब लगेगी। उसकी मम्मी है 12th, तो उसने वो खुश हुई, कह रही मैं तो मम्मी अपनी मम्मी को बोली कि मैं तो ये अपने घर के बाहर भी जरूर लगवाऊंगी और मैं पढ़ूंगी, खूब पढ़ूंगी। 25 साल हो गए जी मेरे को की हुई, तो मेरे को मतलब ये एक बहुत अच्छा मतलब वो लगा कि हाँ मैंने भी कुछ किया हुआ है, तभी मेरे नाम की प्लेट यहाँ पे लगी है। आज तक हमने नॉर्मली यही चीज़ देखी है कि घरों के बाहर ना मेल मेंबर्स की नेम प्लेट्स होती हैं, बट हमारे गांव ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पर फीमेल्स की नेम प्लेट्स हैं, एंड दैट टू विद देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मेरे नाम के आगे भी सिर्फ BCom लिखा है, सो मैंने अभी ग्रेजुएशन ही पूरा किया है। बोथ माई पेरेंट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो मेरा ये अब आगे जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर और क्वालिफिकेशंस ऐड हों मेरे नाम के आगे। मेरे पास बच्चे ट्यूशन आते थे तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि आपकी नेम प्लेट वहाँ पे क्यों लगी आपके घर पे? तो मैंने बताया उनको कि मैंने अच्छी स्टडी की है इसलिए मेरी नेम प्लेट मेरे घर के आगे लगी है और आपको भी अच्छे से पढ़ना है। तो उन्होंने पूछा दीदी हमारी भी नेम प्लेट लगेगी? तो मैंने उनको बोला हाँ हाँ आपकी भी लगेगी नेम प्लेट। और जैसे हमारे यहाँ पहले लड़कियां थी जो 12th के बाद स्टडी करना छोड़ देती थी, तो उन्हें भी अब बहुत अच्छा फील हुआ है कि और उन्हें भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है इससे कि हम भी आगे पढ़ेंगे और हमारी भी नेम प्लेट हमारे घर के बाहर लगेगी। गांव में कई साल पहले शादी करके आने वाली रुबाल देवी अब ग्राम पंचायत की मेंबर हैं। रुबाल देवी ने BA और B.Ed अपनी शादी के बाद किया। बहुत अच्छा लगा, मतलब कि पहले हमारी जो मतलब कि जो स्टडी की थी उसके बीच में तो ठहराव आया ही था, मतलब कि अब मतलब कि नेम प्लेट देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि हाँ हमने पढ़ाई की थी। गांव के सरपंच का कहना है कि उन्होंने एक सर्वे करवाया जिससे पता चला कि गांव में कई खवातीन पढ़ी लिखी हैं और इनके नामों की प्लेट्स खवातीन में तालीम को फरोग देंगी। हमने ये सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा वो बन जाएगा कि
हमने तो एक वैसे ही लगाया था आइडिया कि शायद कुछ हो, लेकिन ये एक अच्छी प्रेरणा दूसरे गाँवों के लिए हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है हमें। हमने जब ये सर्वे किया तो सामने आया कि 30 ऐसी बेटियां और बहुएं हमारे गांव से निकल के आई हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा हायर एजुकेशन कर रखी है। तो हमें बहुत ही एक प्राउड फील हुआ कि यार हमारे गांव में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है। वो जो छुपा हुआ था, उनकी शिक्षा थी जो छुपी, वो खुल के सामने आ गई है। तो अब नेम प्लेट लगाने से उनके घर के बाहर और ये शिक्षा अंकित करने से ये जग जाहिर हो गया है कि ये इस घर में, हर एक गली में यहाँ पे इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं रहती हैं या बेटी रहती है। सामीन, आज के बीबीसी रीड्स में बात यूरोप के उस छोटे से मुल्क की होगी जिसकी आबादी महज 54 लाख है, मगर यहाँ हर साल तकरीबन 10 लाख कारें तैयार की जाती हैं। इस लिहाज से ये मुल्क दुनिया में फी कस सबसे ज्यादा कारें बनाने वाला मुल्क शुमार होता है। जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत सनती ढांचा और हुनरमंद अफरादी कुव्वत ने इसे आलमी ऑटो इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम दिला दिया है। मजीद तफसील सुनिए आज के बीबीसी रीड्स में, जिसे तहरीर किया है जॉन लॉरेंसन ने, जबकि पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दरमियान एक बड़ी फैक्ट्री है जहां एक मशीन कारों के ढांचों को असेंबलिंग लाइन पर रखती है ताकि उनकी तैयारी शुरू हो सके। ये स्टील के ढांचे अभी अभी रोबोट्स की मदद से वेल्ड किए गए हैं। फैक्ट्री में ऐसे 690 रोबोट दिन रात बस गाड़ियों के ढांचे बनाने में मसरूफ है। लेकिन कहानी बस इतनी नहीं। अगले मरहले में सुर्ख पैंट्स और सफ़ेद टी शर्ट्स में मलबूस इंसानों की एक फौज इन बेजान ढांचों को मुकम्मल कारों में बदल देती है। हर मिनट एक नई गाड़ी अपनी हेडलाइट्स जलाकर असेंबलिंग लाइन से बाहर निकलती है, जैसे जिंदगी की नई किरण। ये मंजर है उस यूरोपीय फैक्ट्री का जो कोरियन कंपनी किया ने स्लोवाकिया के शहर जिलिना के करीब कायम की है। कंपनी के मुताबिक ये सरमायाकारी 2.5 अरब यूरो, तकरीबन 2.9 अरब डॉलर की है। बीबीसी रीड्स में आज बात स्लोवाकिया की, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी सिर्फ 54 लाख है, लेकिन हर साल तकरीबन 10 लाख कारें तैयार करता है। वैसे तो चीन सालाना 31 मिलियन कारें बनाता है, लेकिन स्लोवाकिया दुनिया में फीकस सबसे ज्यादा कारें बनाने वाला मुल्क है। एक छोटे से मुल्क का कारों की दुनिया में बड़ा नाम। तहरीर है जॉन लॉरेंसन की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। स्लोवाकिया सिर्फ किया गाड़ियों का ही घर नहीं, बल्कि यहाँ वॉक्सवैगन भी गाड़ियाँ तैयार करता है। इसी तरह स्टेलांटिस, जो पहले पीजो, सिट्रोन, फिएट और क्राइसलर था, और जैगुआर लैंड रोवर भी यहाँ कारें बनाते हैं। वोल्वो का कहना है कि वो 2027 में यहाँ इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री कायम कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं, बल्कि इस बात की निशानदेही भी है कि किस तरह एक छोटा यूरोपीय मुल्क आलमी ऑटो इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी बन गया। कारों की फैक्ट्री की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ मशीनों के शोर में नहीं छुपती, बल्कि इंसानों के ख्वाब और मेहनत की गवाही देती हैं। स्लोवाकिया का शहर जिलिना में कायम किया की फैक्ट्री में 3,700 अफराद काम करते हैं। इनमें से एक हैं 48 बरस के मार्सल पकोन। मार्सल कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें गाड़ियों से जुनून की हद तक इश्क था। आज वो उस टीम का हिस्सा हैं जो कारें बनाती है, और ये उनके लिए ख्वाब की हकीकत हो जाना है। मार्सल ने शुमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में जिंदगी गुजारी, मगर आखिरकार अपने वतन लौट आए ताकि इस फैक्ट्री में काम कर सके। इस फैक्ट्री के एक और हिस्से में, जहां दरवाजों की इंसुलेशन लगाई जाती है, हमारी मुलाकात 23 बरस की सिमोना कोनोवा से हुई। उन्होंने बिजनेस की तालीम हासिल की। ये उनकी ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ फवाइद हैं। उनका कहना है कि उनका आधा खानदान यहाँ काम करता है, इसलिए उन्होंने भी यहाँ आने का सोचा। उन्हें यहाँ के लोग काफी पसंद हैं। सिमोना की तनख्वाह फिलहाल 1300 यूरो माहाना है, जो दीगर कंपनियों के मुकाबले में बेहतर है। सिमोना को इस बात पर फख्र है कि स्लोवाकिया इतनी बड़ी तादाद में कारें तैयार करता है। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि कारों की सनत सिर्फ मशीनों की ताकत नहीं, बल्कि इंसानों की मेहनत, ख्वाब और फख्र का भी दूसरा नाम है। किया के इस प्लांट पर काम करने वाला हर फर्द ही स्लोवाकिया से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ दर्जन भर सीनियर मैनेजर्स कोरिया से हैं, और उन्होंने अपने रहने के लिए गांव के मज़ाफ़ात में चंद किलोमीटर दूर आबादी बनाई, हिफाजत की खातिर जिसके चारों तरफ दीवार है।
जब स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था तो यहाँ तैयार की गई गाड़ियाँ मगरबी मेयार के लिहाज से नाकिस, ज़्यादा शोर करने वाली, ज़्यादा ईंधन खर्च करने वाली और सुस्त रफ्तार समझी जाती थीं। लेकिन 1989 के इनकलाब ने कम्युनिस्ट रहनुमाओं को रुखसत कर दिया और फॉक्सवैगन ने 1991 में यहाँ की कार बनाने वाली कंपनी स्कोडा में सरमायाकारी शुरू कर दी। सन 2000 में वो इस कंपनी की मालिक बन चुकी थी। सन 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 नई रियासतों में तकसीम हुआ, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। कारें बनाने वाली दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भी इन रियासतों में सरमायाकारी शुरू कर दी। कारें बनाने वाले सनअत के माहिर पीटर प्रोकोप कहते हैं कि लागत के एतबार से स्लोवाकिया को अब भी बढ़तरी हासिल है। उनका कहना है कि एक तरफ यहाँ अब भी मजदूरों की तनख्वाह कम है, मगरबी तनख्वाहों के तकरीबन 60% के बराबर, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉम्पिटिटिव है। उधर फैक्ट्री में किया की असेंबली लाइन में मजीद आगे एक मशीन है जो गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग का निज़ाम नस्ब करती है। जब वो मशीन आगे बढ़ती है तो लोगों को रास्ते से हटाने के लिए मौसीकी की धुन बजाई जाती है। बहुत सी गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील दाएं जानिब है, जैसे बरतानिया में होते हैं। फैक्ट्री में तैयार की गई गाड़ियों के लिए बड़ी मंडी बरतानिया ही है, जहां सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ियों में किया का चौथा नंबर है। इससे पहले फॉक्सवैगन, BMW और फोर्ड आती हैं। बरतानिया के बाद यूरोप में किया गाड़ियों की बड़ी मार्केट स्पेन, इटली और जर्मनी है। यूरोप में किया के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क हेड्रिच कहते हैं कि स्लोवाकिया में गाड़ियां बनाने वाली सनत को ये भी फ़ायदा है कि मुल्क मरकज़ी मकाम पर कायम है। उनका कहना था कि स्लोवाकिया हकीकतन यूरोप के दिल में है, बड़ी मंडियों से बहुत अच्छे अंदाज से जुड़ा हुआ। हाइड्रो से लेकर न्यूक्लियर तक स्लोवाकिया में तवानाई पैदा करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही कम कार्बन खारिज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल का ये मतलब है कि इस मुल्क में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हुकूमतों की जानिब से फराहम की जाने वाली रियायतों के लिए ज़्यादा अहल होती हैं। इसकी एक मिसाल बरतानिया की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फराहम की जाने वाली ग्रांट है। स्लोवाकिया का एक और अहम फ़ायदा ऐसे अफराद या इदारों का वसी नेटवर्क है जो कारों की सनत में इस्तेमाल होने वाला खाम माल फराहम करते हैं। तकरीबन 360 कंपनियां कारों की सनत के लिए काम करती हैं। मार्क हेड्रिच कहते हैं कि सप्लायर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अहम है। स्लोवाकिया की हुकूमत कारसाज कंपनियों के लिए ये मराद इसलिए देती है क्योंकि इससे मुल्की मईशत को बेपनाह फ़ायदा पहुँचता है। शहर के मेयर पीटर फैबियन कहते हैं कि किया कंपनी की वजह से उनके यहाँ बेरोज़गारी कम हुई है और ख़ित्ते की माशी ताकत में नुमाया इजाफा हुआ है। आज 20,000 से ज़्यादा लोग किया और उससे मुंसलिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इसके अलावा स्लोवाकिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेश ग्रेजुएट्स को किया की फैक्ट्रियों में काम और तरबियत का मौका मिलता है। स्लोवाकिया अगरचे इस मैदान में सबसे आगे है, मगरबी और एशियाई ममालिक के कारसाज साबिक मगरबी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक में भी अपनी सनतें लगा रहे हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें।